Congratulations on your first anniversary, taking it slow. Here's looking forward to many, many, many more years of taking it slow and easy with you guys. What's up, guys? I'm Somdev Devvarman. That was Bullet, and I guess everyone is celebrating the first anniversary of the Taking It Slow podcast. Duju and Vivek, you guys did a fantastic job. I personally love listening to pretty much all of your podcasts and really enjoyed being on it as well. So I really look forward to you guys continuing this, coming up with a lot more stuff. Good luck and congratulations once again. Hey guys, after years of being asked to talk about cricket, you're the first to give me the opportunity to blend my two loves, cricket and wrestling. I got to speak about clotheslines and cut shots, wickets and pinfalls in the same breath, and I couldn't thank you enough. I've always enjoyed my time on the Taking It Slow podcast, and here you are, 1 year later, celebrating your first ever anniversary. And here's to many, many more years of entertaining your audiences, and I can't wait to be back on your show and talk about a lot of wrestling, a little bit of cricket. Congratulations, Taking It Slow podcast. I hope both of you remembered the anniversary. क्योंकि अगर एक भी भूल गया तो इतनी गालियाँ पड़ेंगे ना भाई. Congratulations to the Taking It Slow podcast on completing one successful year. I was very lucky that I was also part of it, and I've thoroughly enjoyed many of the podcasts and wish them all the love and all the luck for the amazing next few years. Wow, it's been a year already. A year of light-hearted talks, gossips, giggles with diverse folks. A year of dedicated listeners with two brothers and their whiskers. A year where conversation flow. Happy anniversary, Taking It Slow. Hello, my favorite podcasters. Congratulations on completing 1 year and all the best for everything that's ahead. Taking It Slow for the win. Congratulations on completing 1 year with Taking It Slow podcast. Really excited to see who's going to come on next. Keep it up. All the best for all the new conversations, exciting guests that are coming up. Congratulations once again. Congratulations to Taking It Slow podcast on their anniversary. You're doing a great job, guys. Just continue and continue to scale new heights. All the best. Wow, it's been a year. I mean, I remember our interview like it was almost just 365 days ago. That's amazing. And I must say, I think mine was the real high point of your interviews. I mean, yeah, you had some stand-up comedians and you had a doctor who saved COVID patients and all. But I really think it picked up after my interview. So, you're welcome. I mean, congratulations. You're doing so well, guys. Keep it up. All the best. Many congratulations to Taking It Slow podcast for completing 1 full year. And thank you so much for having me on Taking It Slow. And wish you best wishes for a very, very, very successful stint ahead. It's been 1 year, 52 weeks of the Taking It Slow podcast. It is our anniversary special today, and I have a very, very, very special guest to grace the occasion. It's another Sunday. You know what that means. It's time to take it slow. I haven't said that line for like 3 months, dude. और विशु क्या हालचाल? यार, people must be missing me ना. ये वाली स्माइल कहाँ देखने को मिलती है? मेरे को देख के लोगों को लगता था कि चलो ठीक है, उनकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है. अगर ऐसी लाइफ भी जी रहे हैं लोग तो यार अब तो काफी सही है हालचाल. काफी बेटर हो गया है last 3 months. So you haven't been here on the podcast since 18th of April. 18th of April was the last thing that we did together. Almost 3 महीने हो गए. Where have you been? कहाँ क्या चल रहा है लाइफ में? What have you been dealing with? Tell everyone. बहुत ही weird सा फेज था यार. मतलब one of the toughest phases of life. पापा को कोविड हो गया था 23rd अप्रैल को. He went into the hospital और वहाँ से फिर 3rd मई को he went into the ICU और फिर वहाँ से 15th मई को he came out of the ICU. तो 23rd अप्रैल से लेके 15th मई का टाइम मैंने रात को खाना नहीं खाया. बहुत ही गंदा था. और मतलब 15 मई के बाद थोड़ा सा रिकवरी होना शुरू हुआ एंड देन फिर और काफ़ी सारा टाइम लगा. अब रिकवर हो गए हैं पापा.
ये बहुत ही वल्नरेबल था, बहुत सैड टाइम, हर रोज हॉस्पिटल के इतने चक्कर लगाना, और रात को यू कीप ऑन वेटिंग कि मतलब रात को नहीं सोया मैं पूरे 1 महीना कि कहीं हॉस्पिटल से कॉल आए तो वो मिस ना हो जाए। तो बहुत ही सैड था। एंड द वर्स्ट पार्ट वाज कि तुम हॉस्पिटल जाते थे, इतने सारे लोगों को के साथ यही हो रहा था। एंड वो सब होने के बाद अभी जब मैं फिर से, थैंकफुली मेरा ऑफिस काफ़ी अंडरस्टैंडिंग था, कुछ काम वाम नहीं दिया उन्होंने, लेकिन फिर जब थोड़ा बहुत काम मैंने बोला कि हाँ नॉर्मल सी पे आना है, तो द फर्स्ट थिंग दैट आई हैड टू डू वाज कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो मेरे जो डायरेक्टर हैं उनको उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल में कुछ काम दे दिया गया था। तो उन्होंने बोला था कि ये करना है कि हाउ द गवर्नमेंट हैंडल द पैंडेमिक सो वेल, तो उसके ऊपर रिपोर्ट बना दी थी। नाइस या नाइस। मतलब वी हैड बीन वेरी लकी यार, हम चाचा की वजह से, अक्षय भैया डॉक्टर हैं उनकी वजह से, तो So, बहुत for people lucky who थे हम। might not realize, and which obviously you'll not be able to verbalize it as well as you want to because you are so closely affected by the situation, it was a very serious case, and a lot of us were starting fearing the worst. हाँ हाँ मतलब जिस स्टेज पे एक पॉइंट पे आ गए थे, इट वाज लुकिंग लाइक दैट देयर विल बी नो कमिंग बैक, एंड some of us had हाँ started mentally preparing ourselves. Even you had started mentally या preparing yourself for the worst. And touch wood, thank the Almighty, it has been a miraculous recovery, and we've really been one of the lucky ones who have been able to see this miraculous recovery. It is very difficult to explain what you are going through at that point of time. मतलब इतना हेल्पलेस जो फीलिंग होती है हाँ ना, वो एग्जैक्टली काफी डिफिकल्ट टू एग्जैक्टली एक्सप्लेन है कि तुम्हें पता ही हो रहा है एंड तुम कुछ नहीं हाँ कर कुछ भी सकते। नहीं कर सकते। मतलब हमारी तो होती है, चाचा ही लाइक वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड डॉक्टर सर्जन इन फरीदाबाद, तो उनकी हेल्पलेस फीलिंग लाइक आई यूज्ड टू टॉक टू हिम, मेरे को लगता था मैं उनसे बात करूंगा तो वो मेरे को थोड़ा सा कंसोल करेंगे, लेकिन ही स्टार्टेड क्राइंग। मेरे को लगता है यार मैं तो छोटा हूँ मैं उल्टा हो रहा होता था ऐसा। एंड यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब हॉस्पिटल्स डेफिनेटली आईसीयू अंडरस्टाफ थे, बहुत गंदा। एंड क्योंकि हमारे मेरे पास मतलब भैया थे, मतलब हु इज एन एमबीबीएस डॉक्टर, और चाचा थे एंड जिन्होंने हु सारा इज कुछ हैंडलिंग द कोविड रिस्पांस फॉर फरीदाबाद। हाँ हाँ फॉर मतलब ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से। एंड वी गॉट अ स्पेशल परमिशन कि Yep. वो 3 बार जाते थे घर में। एंड देयर वर सिचुएशंस लाइक 3 ऐसे सिचुएशंस हुए थे कि अगर अक्षय भैया नहीं जाते अंदर उसको ठीक नहीं कर रहा होता, क्योंकि बहुत अंडर स्टाफ थे यार। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द हॉस्पिटल बिकॉज उन्होंने ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया पूरे टाइम पे, विच वाज सच अ ह्यूज टास्क। वो ही नहीं It मिल was a रहा था। luxury. It was a हाँ luxury. कि ऑक्सीजन मिल रहा है लोगों को, और मतलब इतने मेडिसिन दिए। नॉट क्रिटिसाइजिंग द हॉस्पिटल, उनके सबके अपने मजबूरी थी, लेकिन देयर वर सिचुएशंस अगर भैया नहीं जाते अंदर मतलब खाना खिलाने या जो भी देखने, तो मतलब देयर वाज नो कमिंग बैक। लाइक कि एक पाइप निकला हुआ है, उसमें से मास्क में से बाईपैप का जो होता है वो सही करके आया, बाईपैप में पानी, मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो ऑक्सीजन का पोर्ट होता है वो अगर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए तो उसमें ऑक्सीजन आना बंद हो जाता था, वो कुछ ऐसा था। तो भैया गए टाइम पे और उन्होंने देखा और फिर उन्होंने सही करा। नहीं था यार लोगों के पास टाइम, बट ठीक है वापस आ गए अब। और मेरे लिए भी बहुत ही अजीब सा टाइम था, स्पेशली भैया के लिए तो अजीब था ही, क्योंकि ऐसे जाना और देखना हर बार, वो तो हमको आके जो बोलते थे थोड़ा सा पॉजिटिव Diluted करके version बोलते होता थे कि था। हाँ हाँ, लेकिन ऐसे अपने फादर को देखना ऐसी कंडीशन में बहुत ही गंदा था। तो मैं तो बस भैया और चाचू को ही क्रेडिट देता हूँ कि भाई हुआ। बट ठीक है यार, नाउ वी आर बैक एंड वी वर वेरी वेरी लकी कि कुछ भी पोस्ट कोविड वो नहीं हुआ, वरना ब्लैक फंगस से मैं आई हैव फ्रेंड्स जिनके रिलेटिव्स इतनी बुरी तरह अभी भी उनकी हालत ख़राब है। तो ठीक है, बट नाउ मेंटल स्पेस थोड़ा सा बेटर हो रहा है। एंड बहुत फिजिकली मेंटली टोल ड्रेनिंग होता है। था यार। हाँ यार बहुत ज़्यादा, मतलब पेशेंट के लिए तो होता ही है, पूरी फैमिलीज के लिए इतना ज़्यादा होता है यार। आई यूज टू सी वहाँ पे लोग खड़े ही हुए हैं सुबह शाम रात, हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट बड़ा गंदा होता है यार। मतलब देखना और अपने आप को पॉजिटिव रखना उस टाइम में कि भाई लोग, तुम जब भी जा रहे हो तुम्हें 2-3 ऐसे किस्से दिख ही जाएंगे, भाई लोगों ने रोना शुरू कर दिया बिकॉज समवन हैज पास्ड अवे। पापा बताते हैं कि उनके तरफ साइड से रोज ऐसे 2-3 बॉडीज पैक होके जा रही हैं। तो मतलब बहुत ही वियर्ड सिचुएशन था यार, बहुत ही वियर्ड सिचुएशन। और अभी भी ठीक है, अब तो सही हो गए, लेकिन थर्ड वेव आने वाला है, लेकिन उसके लिए हम कितना सीरियस हैं वो नहीं पता हमें। लोग मनाली में कर रहे हैं भाई हाँ चिल, थर्ड वेव के लिए प्रिपेयर कर मनाली रहे हैं में, काफी सही से। हिमाचल में
बहुत पता नहीं यार क्या कर रहे हैं, बहुत बहुत ही अजीब सा बैलेंस करना पड़ेगा यार, मतलब सबको, कि एक तरफ तुम इससे कोविड से मर रहे हो, अगर वो नहीं मर रहे हो तो इतने सारे लोगों का अपना लिविंग जा रहा है, उनका जो भी जॉब है, उनका बिजनेस है वो खत्म हो रहा है। बहुत अजीब सी सिचुएशन हो गई है वही दुनिया की, तो तू खासकर इंडिया रिपोर्ट में में क्या डालने वाला है? हाउ हैज इंडिया हैंडल्ड इट? वो तो मैंने डाल दिया, वो तो बहुत अच्छी चीज है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एकदम प्रोएक्टिव मेजर्स लिए और स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ हैंडल नहीं कर पा रही थी, तो फिर उन्होंने नाइस। इतने वॉर लेवल लाइक सिचुएशन को हैंडल किया और वो तो काफी अच्छी रिपोर्ट बनाई थी, सही था यार। आई मिस दिस यार कि यहाँ पे आना, लेकिन मेंटल वो था ही नहीं कि भाई आओ। But it's good to have you back, man. And what better time to have you back than today? मतलब Yeah. हम लोगों ने जब शुरू किया था, so for everybody who's listening, we started this because we just wanted to catch up with each other. हम लोगों को था कि हम लोग बात नहीं कर पा रहे हैं बहुत टाइम से, so we've grown up together sort of. विश्व मेरे से 5 साल छोटा है, but still he has grown up with me, so we. हाँ यार। So we have been very close over the years, and काफी टाइम से हम लोगों के बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा था, गैप हो रहा था because of different cities and different lifestyles. So we wanted to catch up with each other. इसलिए हमने सोचा चलो हर वीकेंड पे, हर संडे को एक वीडियो कॉल क्या करेंगे to catch up with each other. तो जब हमने पहली वीडियो कॉल करी तो हमें लगा हम तो बहुत फनी है यार। जो अभी तक हमारी ऑडियंस को नहीं लगता है, 1 साल हो गया। तो हमने जब शुरू किया था तो ये सोचा था कि हम लोग कुछ ऐसे एम्स नहीं रखेंगे, कुछ ऐसे टारगेट्स नहीं रखेंगे कि इतने व्यूज आ रहे हैं, इतने लाइक्स आ रहे हैं या सब्सक्राइबर्स हो गए, ऐसा कुछ हमने टारगेट नहीं रखा था। हमारा पहला टारगेट था कि हम 52 एपिसोड्स करेंगे, एंड टुडे इज द 52nd एपिसोड, सो गुड जॉब मैन, गुड जॉब, वी हैव स्टक थ्रू इट। यस, कोई और तो कर नहीं रहा है, क्योंकि हमारे घर वाले तो ऐसे ही बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। My wife has been really understanding. वो मेरा पूरा सैटरडे इवनिंग से लेके संडे सुबह तक आई एम इनविजिबल इन द हाउस, सो शी हैज बीन वेरी अंडरस्टैंडिंग। तो मैं ये नहीं बोलूँगा घर वाले, आई थिंक दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन रहता होगा वो। बट 52 एपिसोड्स हो गए यार, और आई थिंक हमारा टारगेट सही था, मतलब टू हैव अ प्रोसेस बेस्ड टारगेट, नॉट अ रिजल्ट बेस्ड टारगेट, कि भाई हम लोगों को ये करना है, नॉट सेइंग इन एनी वे दैट द रिजल्ट्स हैवंट बीन गुड। अभी हमने इमेजिन भी नहीं करा था, सो मतलब जब शुरू करा था कि it will turn out to be the way it has turned out to be. Not that we have achieved something great, but we have been fortunate to make a lot of friends. In our hearts, we have काफी सारे surreal moments रहे हैं हमारे लिए। मतलब I could not imagine in the wildest of imaginations कि मैं सोमदेव देवर्मन के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, मेरे पास उसका फोन नंबर होगा और हम चैट करेंगे। मतलब आप जॉय भट्टाचार्य से बात कर रहे होगे, सोमदेव से बात कर रहे होगे। He's a freaking Arjuna awardee, man. He has represented India in so many places. He has won medals for India. He has faced off against Federer and Nadal. He's like, in my mind, he's an Indian tennis legend. I am fortunate enough to say that I know him. And that has happened only because of the podcast. So mind blown. Podcast has taken us to places जहाँ पे हम लोग नहीं कभी सोचते कि भाई कि we'll reach out to these people, we'll talk to these people, कि कभी भी नहीं। But it has been pretty good यार, it has been a pretty good ride। मतलब जहाँ से हमने शुरू करा था। Okay, so for those who don't know, this podcast is going to be just us reminiscing about the last year. Taking back time to the first episode. याद है उस टाइम पे हम क्या कर रहे थे? उस टाइम पे हमारे पास पॉडकास्ट का नाम ही नहीं था भैया। Like I think हम लोग we were supposed to name the episode, और डिस्कशन करते करते we made it the name of the podcast itself. ये शुरू कैसे हुआ था? हाँ भैया धीरे धीरे कर लेंगे। Taking it slow. I remember that dialogue कि हाँ धीरे धीरे हो जाएगा। तो यही रखते हैं ना। So then we one of the most fun episodes though. मतलब अगर किसी ने नहीं सुने ना, and you want to know what randomness sounds like, what absolute randomness sounds like, go visit our first couple of episodes. First वाला तो शायद मेकिंग ऑफ द पॉडकास्ट था, एंड उसके बाद मुझे एग्जैक्टली chronological याद। हाँ, बहुत रैंडम चीज है, बहुत मंदिर था,
two people just chatting randomly. So check out those episodes. Then we realized that there is something we can do. We can call people on the podcast and chat to them. So our first guest was Zoya, and she's been a sort of a mascot for us. जब भी हमारे सब्सक्राइबर्स में एक जीरो अकाउंट बढ़ता है, जोया आती है. ये हमारा थंब रूल है. And then we started reaching out to more and more people who are relatively more famous or renowned. And someone who I really admired, I reached out to, was Agrima Joshua. I've been a massive fan. I've been a massive fan of her work as well, and her personality as well, on Twitter, on in public spaces, the stuff that she's been through, and still carries herself off with such a brilliant smile. I've been a massive fan, and out on a women fancy, I just tweeted her, I say randomly, "Okay, hi, I want to reach out to you. Can you give me a follow back, or can you share your email?" She was kind enough to follow me back and DM me. हाँ बोल ना क्या हुआ? I was like, ऐसे होता है क्या? Is it that easy to talk to someone? We chatted for a while. She ensured that I am not a creep and I will not harass her. I'll not pile on to her, because she obviously has had great experiences with that in the past. But public experiences. She was extremely kind and extremely generous to agree to come to the podcast. उस time पे we were nothing. कोई मतलब what do we tell people about us कि हम लोग क्या हैं, हम लोग क्या करते हैं, क्या हम We are two brothers. We are two who are MBA graduates, जो अभी भी हम अपने ईमेल में लिखते हैं. बट ये पॉडकास्ट क्या है, हमारा कुछ आइडेंटिटी नहीं था, कुछ डेफिनेशन नहीं था, अभी भी कुछ नहीं है फॉर श्योर. नहीं, But अभी बहुत बेटर है हम. उस time- Let's not be that humble यार. Let's not be that humble. I know that both of हम दोनों की सबसे बेस्ट क्वालिटी है humility. लेकिन अब तो काफी अच्छा है. हाँ. So उस टाइम पे we had like 10 episodes out, and we had literally no one that she would know. We had talked about absolute random shit. We had talked about China. We had talked about work from home. We had talked about sales. Absolutely random shit we had chatted about. And she agreed to come on the podcast. Yeah. And that was a great confidence booster यार. कि मतलब करने she के was बाद agree so कि- kind, man. She is. I'm still in touch with her, obviously, and I can now call her a friend. And she was so a subtle flex there. A subtle flex. so extremely kind person, and she was so kind with her time. मुझे याद है कि 2-2.5 घंटे तक she chatted with us, and she made us feel comfortable. She made us feel comfortable. So this obviously didn't go online, but when we recorded the episode with her, we had a chat with her the previous day कि हाँ we are introducing ourselves और ऐसे ऐसे है. उस टाइम पे we were all very casual, very calm, composed कि हाँ ठीक है, सेलिब्रिटी, ग्रेट स्टैंड अप कॉमिक, सेलिब्रिटी, ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी बहुत कैजुअली बात कर रहे हैं. बट नेक्स्ट डे व्हेन द कैमरा स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, हम दोनों की जो हवा टाइट हुई थी उस टाइम पे. एंड क्योंकि हम लोग ऑलरेडी थोड़ा डिस्कस कर चुके थे और हमने कभी भी ऐसे करा नहीं था. वी रिकॉर्डेड फॉर अ फ्यू मिनट्स, लाइक 4-5 मिनट्स, और फिर हमने कहा कि नहीं, लेट्स स्टार्ट अगेन. वो हम वी डिडंट स्टार्ट ऑन अ वेरी गुड फुट. तो फिर अग्रिमा ने बंद करा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो. उसने शी लिटरली कोच्ड अस थ्रू द एपिसोड कि what can I do to make you feel comfortable. I mean, I still cannot believe she took out that much time, and she was so kind to literally guide us, literally coach us on how to record a podcast with a guest, with a celebrity, with a famous person. We were like in awe कि भाई we are speaking to someone who is a pretty big deal. So जो भी podcast बनना शुरू हुआ है, a massive credit goes to Agrima. So Agrima, if you are listening this, thank you. As I always say, you are one of us, and you'll always be one of us. And she has been kind enough. I don't think ये उसके लिए कॉम्प्लीमेंट है. One of us. देख अपने आप को. हाँ यार, मतलब आई थिंक बहुत सारे माइलस्टोन्स रहे हैं हमारे. कि पहले जोया को बुलाना, तो फिर उससे लगा कि हाँ अपने फ्रेंड्स को बुला सकते हैं. उसके बाद अग्रिमा का पॉडकास्ट पे आना, वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था. हमें लगा था कि यार अच्छा, फेमस लोग भी आ सकते हैं हमारे पॉडकास्ट पे, कि हम और कौन से डायरेक्शंस में लेके जा सकते हैं इस चीज़ को. उसके बाद probably we sort of started finding our voice कि we are two brothers who know each other, but we try to understand our guest better, who is unique in his or her own way. People who we know very little about,
either be it a adventure photographer or a wedding photographer or a Supreme Court advocate or an actor, मतलब diverse backgrounds, people with different stories who we don't really know much about. Maybe हम public faces को जानते हैं, but we don't know much about the people what they are passionate about. For example, रोहन जो she is very passionate about Manchester United. हमने उससे मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में बात करी रादर देन हार्पिंग ऑन कि हाँ स्टैंड अप का क्या रूटीन होता है. वो ही इज फेमस फॉर स्टैंड अप, बट उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करी. मतलब टू बी ऑनेस्ट वो रोहन जोशी वाला पॉडकास्ट तो मेरे लिए थोड़ा सा अजीब सा हो गया था, क्योंकि पहले 15 मिनट आप लोगों ने मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करी, फिर 15 मिनट आप लोगों ने पेट्स की बात करी, एंड मेरे पास दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं है. एंड जो मतलब ऐसे लोगों से बात करने में आई थिंक मेरे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था ऐसे रोहन गावस्कर से बात करना. मेरे को ऐसा लग रहा है वो बंदा कितना सही है. हम बस एक पब्लिक पर्सोना बना लेते हैं, उससे बात करके पता चला कि यार वो हम लोगों से कितना बेटर है और मतलब कितना मतलब एकदम डाउन टू अर्थ सा बंदा और इतना अच्छा पर्सपेक्टिव है. एंड अभी जो सिनेरियो है मोर ऑफन देन नॉट हर वीक में 2-3 लोग मुझे पूछते ही हैं कि इस बार कौन आ रहा है. सो टचवुड वी बीन एबल टू सेट एन एक्सपेक्टेशन कि हाँ इस संडे कुछ तो डिफरेंट होगा, कुछ यूनिक होगा, कोई तो अलग आएगा, कुछ होगा संडे को. हर संडे कुछ ना कुछ तो होगा. चाहे फिर वो एक रियो का वीडियो निकले बट संडे को कुछ तो आएगा. हाँ, इसके पीछे भी एक बहुत मस्त है यार हम लोगों का स्टोरी कि जब हमने शुरू करा था तो आई थिंक एक एपिसोड रिकॉर्ड करने के बाद 2 एपिसोड रिकॉर्ड करने के बाद हाँ आपको कोविड हो गया था. हाँ शिखा वाज डाउन विद कोविड. तो मेरे को था कि यार कुछ तो आ रहा है, एंड देन आई रिकॉर्डेड अ पॉडकास्ट अलोन पूरा फाइनेंस का ज्ञान देते हुए, जो कि अब हमारे आर्काइव्स में चला गया है, जो तुम्हें नहीं मिलेगा. लेकिन वो एपिसोड सुनने के बाद मेरे को लगा नहीं हर संडे कुछ ना कुछ तो आ रहा है और आपको इन्वॉल्व होना है उसमें. Putting out one episode every Sunday with the amount of back-end job that it takes to produce and release an episode is something that I am honestly proud of, because and you should be, both of us have full-time jobs, and I keep getting asked कि ऐसे लोग कैसे आ रहे हैं पॉडकास्ट पे. Honestly speaking, मुझे भी नहीं पता क्यों आ रहे हैं वो लोग पॉडकास्ट पे. क्योंकि मतलब वो कूल लोग हैं जो भी exactly, हाँ. बहुत कूल लोग हैं. मतलब गुलशन देवैया से बात करके ऐसे लग रहा है वो बंदा कितना कूल है यार, कितना कूल आदमी है यार वो. मतलब कि हाँ चलो मतलब दे हैव नथिंग टू गेन. मतलब ऐसा नहीं था कि उसके कोई मूवी भी आ रही थी, कुछ भी नहीं आ रहा था, जस्ट टू टॉक कि हाँ ये लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं, सो करते हैं बात. हाँ, and this has been the case with most of our guests. We literally did not have much to offer to them. कि हाँ हमारे so usually क्या होता है, बहुत ही मेजर फॉलोइंग होता है लोगों का, तो वो प्रमोशन कर लेते हैं अपनी किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट का या किसी बुक का या कुछ भी. But these people literally were up for a chat, and that is extremely cool if you think about it. So yeah, I think we did have something to offer to them. क्योंकि I don't think many people offer just a chat to them. Yeah. Once they reach a certain celebrity status, तो ऐसा बहुत कम होता है कि भाई हाँ बस ऐसे cool सी chat हो. And I think I can say this after chatting with सोमदेव. वो बंदा कितना cool है यार कि he was a regular listener to our podcast, which came as such a surprise to us. It was supposed to be a chat and कि हम उससे कुछ भी बातें कर रहे हैं, लेकिन we were motivated, like he motivated us कि यार तुम जो कर रहे हो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो तुम यार, तुम करो. One more thing that people keep on asking me is how do you approach these people? How do you convince them to appear on your podcast? It is not easy. There is a huge funnel of people that I approach. Huge funnel of people. मतलब on an average after a day's work, मैं almost हर रोज रात को 1 से 1.5 घंटा निकाल के cold emails भेजता रहता हूँ. मतलब दिन में एक दिन में कम से कम 10 से 12 ईमेल्स में लोगों को भेजता हूँ, फिर रिमाइंडर ईमेल्स भेजता हूँ. 50 ईमेल्स में से एक का रिप्लाई आता है, और उन 50 ईमेल्स में से एक रिप्लाई में 10 रिप्लाईज में से एक बोलता है कि हाँ चलो आई विल कंसीडर इट. कर ले, हाँ. उसके बाद उनका पीछे पड़े रहना होता है. So it is a lot of back end manual labor, to be honest. It is not easy at all. And उसके बाद there is a lot of research that goes into preparing every podcast ना. ऐसा तो नहीं है कि बनाना. So this is probably the least prepared podcast that we have done out of the 52 episodes.
क्योंकि इसमें except for the first few. So intro बनाना तो फिर भी छोटा चीज है. If you want to strike a conversation with a person, you want to find out what they're passionate about, and only then they'll be interested in speaking to you. And the research includes a lot of stuff that they have said in their interviews in the recent past, a lot of stuff that they keep tweeting about on their social media, or if you find something common with your guest, you establish that point as well. So there is a lot that goes into the background research of the podcast. और as इंट्रो well. बनाना भी इजी चीज नहीं है यार. मतलब इफ यू गो बैक एंड वॉच अ फ्यू पॉडकास्ट, आई थिंक सब लोग ही, आप जब इंट्रो देते हो एंड ऑल क्रेडिट गोज टू यू, आप ही लिखते हो मोस्ट ऑफ द इंट्रोज, सब लोग ऐसे खुश होते हैं. मतलब एवरीवन्स रिएक्शन इज लाइक, यार मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना मस्त बंदा हूँ. मैं मस्त बंदी हूँ. तो वो शुरुआत में ही गुड एक्सपेक्टेशन इज सेट. तो मतलब हर एक छोटे छोटे एस्पेक्ट का ध्यान रखते हुए, बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. हाँ. वही ट्रू. मतलब एडिटिंग में कितना ध्यान रखना पड़ता है वो तो आप अरे बहुत अच्छे से बता भाई. सकते हो. So if anybody is deciding or thinking of starting a podcast or any sort of a content creation piece, editing takes up shitloads of time, dude. Especially when you aren't you don't have Premiere softwares or absolute top of the line softwares. We have very basic softwares for editing, and it takes so much time. So all of my weekends, every Saturday night for the last year or so, has gone into editing the podcast, like today will as well. Editing takes up a lot of time. मतलब ये है कि अभी भी एवरी सैटरडे नाइट ही हो रहा है. वी ट्राइड मेनी टाइम्स कि हम लोग कम से कम 1-2 संडे आगे रहेंगे कि पहले रिकॉर्ड करके रख लेते हैं. लेकिन द मोमेंट वी रिकॉर्डेड 2 एपिसोड्स, तो 2 हफ्ते तक चिल मारा. और उसके बाद फिर जब एक संडे आने वाला है, उसके वेडनेसडे थर्सडे से कि भाई इस बार क्या होने वाला है. तो ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन अभी भी है, बट आई थिंक इंजीनियरिंग इज व्हाट इंजीनियरिंग taught us that. that is ingrained in us. Okay, लास्ट मोमेंट पे आते आते सबको सबसे ज्यादा एफिशिएंसी तभी निकलेगी हमारी. यार वो इसलिए निकलती है क्योंकि यू आर ओल्डर एंड वाइजर देन. लाइक आप फ्राइडे को जितने ओल्ड हो, आप सैटरडे नाइट को उससे ज्यादा ओल्ड हो, आप और वाइजर हो गए हो. तो इसलिए यू वर्क एफिशिएंटली, यू वर्क बेटर, तो प्रोडक्ट भी अच्छा निकल जाएगा. ये एक चीज ना मैंने अभिजीत गांगुली से भी पूछी थी कि हाउ शुड पीपल अप्रोच यू, बिकॉज ये मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि अप्रोच कैसे करना है अगर बात करनी है लोगों से. तो मैंने उससे डायरेक्टली पूछा, व्हाट डू यू थिंक इज द राइट वे फॉर पीपल टू अप्रोच यू. तो उसने बोला, भाई देखो, सबसे पहले तो अगर मैं 3 दिन तक रिप्लाई ना करूँ ना, मुझे चौथे मैसेज में गाली मत दो. कि हाय 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 डैश 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 डैश. यार ऐसे तो मेरे को बहुत सारे वो याद आ गए जोक, जैसे जो लड़के लड़कियों को मैसेज कर रहे होते हैं. उसने भी एग्जैक्टली ये बोला था, ट्रीट अ सेलिब्रिटी लाइक यू वुड ट्रीट अ प्रोस्पेक्टिव क्रश. भाई इंडियंस वो प्रोस्पेक्टिव क्रश को भी ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं. अगर वो 3 मैसेज तक रिप्लाई नहीं कर रही, तो चौथे मैसेज में उसको गालियां ही पड़ रही है. So that's another thing that we've learned. Another interesting thing that's the part of our journey is the creative differences both of us have also had. The We have creative very and non-creative differences that we both have had. मतलब मुझे अभी भी याद है जो तूने कुछ मैसेजेस भेजे थे कुछ लोगों को कि हाँ आपको पॉडकास्ट में इनवाइट करते हुए. Let's not discuss that. I wish मैं यहाँ पे डाल पाता उनके screenshots. I think that won't be good for the podcast, Bia. That won't be good for the image of the podcast. Oh yeah. We've had differences of We our tried own as everything. I think we can portray it in a way that we tried everything. well. That's a very nice way to put it. Huh? We tried the good way. We tried the Vishu way. But now we know what works a little. Yeah, so for me to overcome those differences was also pretty important. Otherwise, this wouldn't have worked. मतलब, we are both again headstrong personalities. Both are very opinionated, and we have both been able to continue for 1 year. शायद हम पहली बार ऐसा कुछ कर रहे हैं साथ में जितना लंबा चला है हमारा. हाँ यार, अब हम दोनों साथ में भी नहीं. आई थिंक जॉब्स को अगर छोड़ दिया जाए, कुछ अपना इनिशिएटिव, आई थिंक पहली बार ही हो रहा है इतना लंबा. मैं स्टम्पाइक भी कर चुका हूँ जो नहीं चला था. नहीं मतलब कंसिस्टेंटली रेगुलर, हाँ कंसिस्टेंट उस पे आना, हर एक उसमें आना. मतलब ऐसे तो जैसे अभी तो इतने सारे लोग स्टार्टअप चल रहे हैं. जैसे मेरी भी एक वेबसाइट चल रही है, मेरा एक जो स्टार्टअप है उस पर काम चल रहा है पिछले साल से, लेकिन बस वो माइंड में चल रहा है.
एक्शंस में जो चल रहा है आई थिंक वो यही चला है एंड विच इज अ प्रीटी गुड थिंग इन इटसेल्फ यार मतलब जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ आई एम रियलाइजिंग कि इवन डूइंग द सिंपलेस्ट ऑफ थिंग कंसिस्टेंटली इज अ प्रीटी ह्यूज टास्क. अभी हम लोगों ने अभी नेक्स्ट ईयर के टारगेट सेट नहीं करे. जैसे कि हमें रिजल्ट बेस्ड टारगेट सेट करने हैं प्रोसेस बेस्ड. हमने फर्स्ट ईयर में तो प्रोसेस बेस्ड करा था कि 52 करने हैं विच वी अचीव्ड आई थिंक. और आई थिंक सेटिंग दैट प्रोसेस बेस्ड टारगेट वाज अ helped, yeah. या There is a lot more that we can do. There's a lot more that we thought we'll do. I thought we'll do, but we have so much only so much time in our hands. We are dealing with everyday jobs as well. We are dealing with families as well. We are dealing with COVID crises as well. There is only so much that we could do, but there is a lot more in store that we had thought of. People who wonder what's next, there is a lot in store. There might be a few more things in store which you might not be expecting at all. Like maybe, चल ठीक है, I'll not give a spoiler. या लेट्स नॉट जिंक्स इट. पहले कर लेते हैं. Let's not jinx it. Yeah. To wind this show up, we thought what better way to do it than a, a self-sponsored segment of slow takes. तो ये पता है, जब से तू गया हो तब से मैंने किसी का स्लो टेक्स भी नहीं किया. दो चीजें तेरे साथ से छोड़ रखी है. एक वो इंट्रो, इट्स अ संडे, यू नो व्हाट दैट मींस, और क्या एंड हाल है स्लो विशु? टेक्स. क्या वो तो मैं किसको पूछूंगा. And slow takes. So to this segment of slow takes, let's try to relive the last year quickly. अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं. Which have been your favorite episodes out of the 52? यार हैंड्स डाउन सोमदेव वाला रहा है मेरा तो. कि जस्ट बिकॉज मतलब चैट तो इतना इंटरेस्टिंग था ही बट दैट गाय मोटिवेटेड अस सो मच. ही अप्रिशिएटेड अस सो मच कि वो ही इज लिसनिंग एंड जस्ट कीप डूइंग. तो हैंड्स डाउन दैट वन. एंड ऑल्सो दिस माइट बी अ शॉकिंग चॉइस लेकिन देयर वाज अ पॉडकास्ट विद प्रणय कोडिसने. आई थिंक ही इज द हेड ऑफ तक्षशिला इंस्टीट्यूशन पॉलिसी हेड. और उसके साथ जो डिस्कशन हुआ था ना यार, मतलब इट वाज सच अ रिलीफ एंड सच अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर कंपेयर टू व्हाटएवर वी सी इन द न्यूज़. मतलब बस ऐसे एक दूसरे को धोते रहना टाइप और फालतू का बकवास करना इफ यू रेज योर वॉइस. और वी आर ओपिनियंस डिडंट मैच और ही taught us so much like within that 1 hour के that was like a policy class that he took. और मतलब even then I won't say कि after the end of the podcast हमारे opinions match कर रहे थे लेकिन the discussion, the quality of discussion was such. बहुत मजा. आपका what has been your best? Continuing from Pranay's episode, you felt more intelligent after the podcast ended. Yeah. क्या कुछ गेन किया है हमने इस एक घंटे में. Yeah, like there is a difference between nation, country. हाँ, state, country, state and nation. Yeah, very cool podcast. So your favorite ones? Obviously loved doing the one with Somdev and Pranay as well. Yeah. I really was very psyched about the episode that we did with Joyda. I mean, he is of course a legend in his field. जितना भी मैं बोलूँ उनके बारे में कम रहेगा. And the time that he spared for us, the humility that he showed to us, the respect that he gave us, and जितने perspective के साथ वो बात करते हैं, it is something yeah extraordinary. Especially when you have been following him for your life यार, आप अपनी पूरी लाइफ में उनको फॉलो कर रहे हो तो must have been a surreal moment for you. I also loved the episode with Garima, squadron leader Garima Mishra. So we obviously did this mini series of the Indian Armed Forces, and fun fact, it had been our most liked episode on the platform in all our 52 episodes before we released the episode with Shreya Dhanwantri. उससे पहले का it was the most liked episode. कितने और celebrities आए, nothing ever beat Garima Mishra. Garima Mishra for the win. So उसकी पूरी स्टोरी, how someone from a completely non-army background, non-armed forces background made it to the Indian Air Force, was the squadron leader there, उसकी struggles, उसकी stories, घर पे पाकिस्तान से फोन आ रहे हैं. मतलब काफी सही एपिसोड था वो. So next question for you भैया. आप इतने सारे गेस्ट को मेल करते हो और इतने कोल्ड ईमेल्स भेजते हो. What has been the toughest guest to bring for the podcast? So, quick sneak peek. The toughest guest or the person who's been the toughest to crack is our next guest, who is going to be the first guest of our next year or our next season, so to speak. Will not spell out the name abhi, but I was chatting with that person
about the number of emails that we took. We counted it, and it was the 56th email that person responded on. 56th email. So just to give you an idea of how much persistence it needs to crack a single thing. Eventually उसका reply था, okay, you win. मुझे छोड़ दे यार, मुझे छोड़ दे. And now we can all have a sense of humor about it. But yeah, the next person to bring on and to is send 56 emails यार without that जो अभिजीत गांगुली without ने a बोला था. reply, without a reply, yeah. और मतलब without a अभिजीत ने गाली, बोला था yes. कि- हाँ, 56 respectful emails. अच्छा, what has been the most difficult episode for you to do? There were 2 episodes जो मेरे को थोड़े से weird लगे थे. One was Akrima Joshua वाला. I don't know what went wrong with me that day. I think that I know that has been one of your favorite episodes. लेकिन मैं पता नहीं कुछ अजीब सा हो गया था स्टार्टिंग में या जो भी था कुछ अजीब सा. And another one that I did was I think हमने वो full potential नहीं लिया उसमें. One was कुणाल कपूर one. कि उसमें हाँ कि मतलब it was over like our conversation was over like at 30 or 40 minutes और from him I got a feeling कि हाँ he would have liked to talk more. हाँ, but I don't know whether we were underprepared or there wasn't, the tuning wasn't that good. तो I think वो कुणाल कपूर वाला I would like to do it again अगर होता है तो. और अग्रिमा वाला मेरे को थोड़ा सा weird लगा था. आपको क्या लगा था? Which episodes didn't go as planned या जितना सोचा था कि भाई उतना अच्छा होगा और नहीं हुआ? अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक फ्रेंड्स रियूनियन का एपिसोड किया था जो इन थ्योरी बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको. जो इन थ्योरी अमेजिंग लग रहा था मेरे को दिमाग में. पहली चीज, हम लोग 6 वर्किंग लोग, उनका टाइम सेट करना जो सबको सूटेबल रहे बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि सबके सब अलग अलग फील्ड्स में काम करते हैं. कुछ फाइनेंस वाले लोग हैं, कुछ यूएस टाइम जोन के हिसाब से काम कर रहे हैं, कुछ अपने जैसे मार्केटर्स हैं. तो उन सबको साथ में लेकर आना टू फाइंड अ कॉमन स्लॉट वाज अ पेन इन द एस. Plus, I realized, so when I had pitched the episode to these friends of mine, मैंने ये सोच के किया था कि जो पर्सनालिटी मैं उनकी जानता हूँ, so vivacious personalities, outgoing personalities, fun personalities, I didn't realize तब तक कि कैमरा ऑन होते ही people change, people become different. And मेरे को हमको भी शायद जब अग्रिमा वाला सीन हुआ था ना, शायद यही हुआ था that we froze in the presence of a third person. And eventually we have sort of started becoming slightly more comfortable in front of the camera. But for the first time, it is a difficult thing to do. And their behaviors change, their personalities change. So I was like, क्या चल रहा है क्योंकि normally इससे एक लोग होते हैं यार. मैं क्यों इतनी बातें कर रहा हूँ? नॉर्मल ग्रुप डिस्कशन में मैं चुप रहने वाला बंदा हूँ. So वहाँ पे I had to really push the conversation forward, really drive the conversation forcefully, so to speak. So that was pretty difficult. हाँ, and the most effortless one, ये तो बहुत efforts वाला था. सुचारिता वाला एपिसोड भाई, मतलब हाँ यार जब so this hasn't gone on camera, this hasn't gone on air, but when she was in the US जब वो record कर रही थी, and when we invited her on, she was under the assumption कि ये सिर्फ एक audio conversation है. तो हम लोग दोनों अपने कैमरा ऑन करके बैठे हैं, उनका कैमरा ऑफ है, और तुम लोगों ने कैमरा क्यों ऑन कर रखा है? हम लोगों ने, आपने क्यों नहीं कर रखा है? तो बोलती है ये वीडियो कन्वर्सेशन है. अबे बोल दो ना, पॉडकास्ट है. तो मतलब ऐसे एकदम फील आया कि कोई हमारी बड़ी दीदी डांट रही है हमको, गधो तुमने क्या कर रखा है, तुम क्या कर रहे हो? सही में उसने बहुत अच्छे से कंफर्टेबल कर दिया था हमें. हाँ, that really set the tone. मतलब उसके बाद हम लोगों को बिल्कुल भी ऐसा awkward नहीं लगा था. मतलब बहुत ही इजी गोइंग थी यार वो बंदी. मतलब जैसा वो था कि जैसे वो ऑन कैमरा अपने वीडियोस वगैरह में दिखती है यूट्यूब में, असलियत में भी इतनी चिल सी और मस्ती बंदी. और मतलब डिस्पाइट अस स्पेलिंग हर नेम रॉन्ग इंट्रो में दो बार बिकॉज वी हैड बीन टॉकिंग टू अ पर्सन नेम सुचित्रा एंड उसके बाद भी शी वाज ओके विद इट. वरना कोई ऐसे होता, मतलब हमें ना एक ब्लूपर्स वाला रील अलग से निकालना चाहिए वैसे. जैसे हमने एक रियो का निकाला था, ऐसे हमें अपना ब्लूपर्स रील भी निकालना चाहिए मेरे ख्याल से. बहुत मस्त बंदी थी. मेरे लिए तो सुचारिता वाला पार्ट था सबसे एफर्टलेस. तेरे लिए क्या था सबसे एफर्टलेस? या सुचारिता वाला तो था ही, बट आई थिंक भरत सुंदरेशन एज अ पर्सन वो इतना इजी गोइंग था यार. जेम ऑफ अ मैन.
Bharat, if you are listening this, we love you, man. सही में मतलब सो इजी गोइंग एंड ही वाज सो हैप्पी मतलब ही इज अ क्रिकेट एक्सपर्ट उसने क्रिकेट की बुक्स लिखी हुई हैं दो एंड ही वाज टेलिंग अस यार मेरे को क्रिकेट के बारे में नहीं मेरे को रेसलिंग के बारे में बात करनी है जो हम लोग ऑन करते हैं यार हम रेसलिंग की बात करेंगे तो लोग हमें जज करेंगे बट ही स्टिल वांट्स टू टॉक अबाउट रेसलिंग बहुत इजी गोइंग है बहुत मस्त बंदा था वो I have had more conversations with him offline as well. Probably one of the nicest people I've come across ever. मतलब जब एक बार तू नहीं था, you had just या dropped off. तो I was wanting to do an episode on wrestling क्योंकि WrestleMania सीजन चल रहा था उस टाइम पे. I just texted him ऐसे ही कि I have no one to talk to. I want to talk about wrestling, but I have no one to talk to. कहते तो डर क्यों रहा है? I'll come and we'll chat. And on his birthday he took out like a good 45-50 minutes. उसने पहले बोला था बहुत ज्यादा ज्ञान वाली बातें नहीं करेंगे, थोड़ा शॉर्ट हाँ। रखेंगे, बट मैं आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। तेरे को प्रॉब्लम है तो मैं आता हूँ. और why would he do it? मतलब such a अरे बहुत मस्त gem of बंदा a है person. बहुत सही बंदा है यार, बहुत सही. Amazing. अच्छा, if you had to pitch one show of yours to a stranger, okay, this is what my podcast is about. This is what Taking It Slow is. What episode would you choose? Okay, there are a few, but I'll name just one. मैं ऐसे डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दूंगा. I think कर्नल मनीष जोशी वाला मेरे लिए है. You stole my answer, dude. कि यार अगर किसी को देखना है तो you see this is what we represent or would want to represent on a consistent basis. उस तरह का कन्वर्सेशन, उस तरह के इंसाइट्स और उस तरह के गेस्ट, मतलब बहुत ही ऑ इंस्पायरिंग कन्वर्सेशन था वो, और वो गेस्ट थे और जो भी इंसाइट्स उन्होंने दिए मतलब बहुत ही सही था. मनीष जोशी सर, आपका कौन सा है? अगर आप मनीष जोशी सर नहीं बोल सकते तो कौन सा होगा? मेरा पहला आंसर भी ऑब्वियसली मनीष जोशी सर ही होने वाला था. आई थिंक प्रणय वाला एपिसोड would be the one I choose to represent. के honest discussions, honest conversations, scope of disagreement, but intelligent conversations without raising your voice, without creating a scene. Actual conversations that happen with actual people. Episode that created the most excitement in your circle जब तूने रिलीज किया या कुछ मैसेज वगैरह भेजा कहीं पे? आई थिंक गुलशन देवैया होगा यार मेरा. के उसके बाद मेरे को ऐसे मैसेजेस आए थे मतलब सब लोग आगे ये कैसे आ रहे हैं, बिकॉज ही वाज अ गाय दैट पीपल हैड सीन हिम ऑन अ बिग स्क्रीन के ऐसा भी हो सकता है. एंड आई थिंक सिर्फ मेरे फ्रेंड्स के लिए नहीं, आई थिंक इट वाज अ स्पेशल मोमेंट फॉर अस टू कि भाई वो ऐसे हाँ बोल रहे. ऑल्दो आई एम नॉट अ पर्सन जो ऐसे वो सेलिब्रिटी स्ट्रक ऐसे देख के यार ये क्या हो गया, बट दैट वाज अ गुड फीलिंग कि दैट इज द मोमेंट वी फेल्ट कि हाँ यार ये पॉडकास्ट भी हमें कहीं सही जगह पे लेके जा रहा है, सही डायरेक्शन में. तो गुलशन देवैया वाला वाज द वन कि उसके बाद से थोड़ा सा टोन सेट होता गया लाइक कि हाँ एक्सपेक्टिंग, पीपल स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग इट. लेकिन वो गुलशन देवैया वाला नो वन वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई इस तरह का गेस्ट भी कभी आएगा. एंड आपके लिए क्या था जो भाई सबसे ज्यादा एक्साइटिंग आपके फ्रेंड सर्कल में या सब में? दो एपिसोड्स, रोहन जोशी एंड श्रेया धनवंतरी. आई मीन जितना इंस्टेंट फीडबैक मेरे को श्रेया के और रोहन के पोस्टर्स डालने जो सैटरडे को हम अपने डालते हैं, प्रमोशनल पोस्टर्स डालते हैं, मेरे इंस्टाग्राम मैसेजेस व्हाट क्या बात कर रहे हो, हाउ, कैसे, क्यों. ओके, सेम वाज द केस विद श्रेया एज वेल. एंड श्रेया के एपिसोड का तो जो एपिसोड जितने लोगों ने भी देखा है, इतना अमेजिंग फीडबैक आया है मेरे लिए नहीं उसके लिए कि क्या ब्रिलियंट बन रही है यार, ये क्या अमेजिंग बन रही है, ये इतनी डाउन टू अर्थ, इतनी गुड टू टॉक टू, इतनी स्मार्ट. सो द बेस्ट फीडबैक बोथ दीज एपिसोड्स. एंड रोहन वाला एपिसोड करने में मुझे पर्सनली बहुत मजा आया था बिकॉज ऑब्वियसली मैन यूनाइटेड एंड पेट्स एंड पेट पेरेंट्स. सो आई पर्सनली रिलेटेड टू दैट अ लॉट. मतलब ये सारे एपिसोड्स ही बहुत फन रहे हैं. बहुत ग्रेटिट्यूड है मेरे को, कुछ भी कहो आप, कि फॉर ऑल द गेस्ट्स हु हैव कम, सारे जो हमारे फाइनेंस वाले आए हैं जिनको हमने तो अभी ऐसे इग्नोर कर दिया है, लेकिन वो भी काफी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट से. क्रिप्टो वाला, हाँ, डॉक्टर्स, सारे जो भी नोन फेसेस हैं हु गिव अस टाइम लाइक विदाउट एनीथिंग टू गेन फ्रॉम अस. So it has been a pretty good ride and I hope to continue riding it. You feel humble, you feel कि यहाँ पहुंचने के बाद
इतना सक्सेसफुल होने के बाद, इतना कुछ करने के बाद, ये बंदा अगर इतना हम्बल है, या ये बंदी इतनी हम्बल है कि हम जैसे नोबडीज के साथ इतना इतना जेनरसली टाइम दे रही है, उनकी इतनी हेल्प कर रही है, सो तुम में किस बात का कभी भी वो एटीट्यूड आना चाहिए यार, तुम कौन हो यार तुम। तो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम दीज पीपल। मतलब कर्नल जोशी से बात करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि भाई क्या कर रहे हैं हम, मतलब कुछ नहीं किया हमने। और I learned a lot from those people to keep my feet on the ground, to not get affected by highs or lows. But yeah, so these guests have added to me in my own life in their own way. So for that I'm उनकी really thankful. पर्सनालिटी से लर्निंग मिला है, उनकी स्टोरी से लर्निंग मिला है। जैसे नावीद ने वो इरफान खान की स्टोरी बताई थी, दैट आई वाज जस्ट लाइंग, ऐसे मैटर्स पे आके लेट गए बस, ठीक है। आई थिंक एवरी पॉडकास्ट हैज बीन अ गुड लर्निंग, बहुत। Yeah. And there is a lot to look forward to. ये हम retirement speech नहीं दे रहे हैं अपना। Yeah. This is just the first milestone that we hope, which will be one in a journey of many. Those who haven't yet, please subscribe to the channel. Please like the content. Please share the podcast in your circles if you find our content worth listening. And until then, Keep taking it slow, people.